صوبے گجرات کی کارکردگی بیرون کے لیے گزشتہ 10 جماعتیں تھیں، موجودہ 17 ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ جن ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں، فیجی میں 2، مالدیو، برازیل، مڈغاسکر، حبشہ، انڈونیشیا میں 2، موزمبیق، برونڈی، یوگانڈا، پورٹوگل، زامبیا، زمبابوے، قطر، بحرین، موریٹانیہ، سینیگل، صومالیہ، اور اس کے علاوہ تقریباً 26 جماعتیں ایسی ہیں جن کی ویزا کے پروسیس کاروائیاں چل رہی ہیں، جن کے روٹ یہ ہیں: کانگو، سیرالیون، منگولیا، ملاوی، لائبیریا، چیلی، بوتسوانا، تنزانیہ، گھانا، ملاوی، جارڈن، کانگو، گامبیا، نائجیریا، گینی بساؤ، موریشس، رینیون، UK، ٹرینیڈاڈ باربوڈس، کینیا، مڈغاسکر، کرغزستان، جاپان، برکینا فاسو، صومالیہ، جبوتی اور گیانا۔ زیادہ تر کی گزشتہ کوئی جماعت نہیں تھی، موجودہ 6 جماعتیں۔ 4 ماہ کی جماعتیں گزشتہ 54 تھی، اس مرتبہ زیادہ تر میں بنگلہ دیش کے لیے موجودہ 6 جماعتیں۔ 4 ماہ کی جماعتیں گزشتہ 54 تھی، اس مرتبہ 129 ہیں۔ 40 دن کی گزشتہ 984 جماعتیں تھیں، اس مرتبہ 614 کی کارگزاری ہے۔ دیگر صوبوں میں گزشتہ 4 مہینے کی 52 جماعتیں گئی تھیں، اس مرتبہ 127 جماعتیں، اور گزشتہ دیگر صوبوں میں چلے کی 917 جماعتیں تھیں، اس مرتبہ 555 جماعتیں روانہ ہوئی۔ جن صوبوں کے میں پچھلے 4 مہینے کی جماعتیں روانہ ہوئی ہیں: کرناٹک میں 49 جماعتیں 4 ماہ کی، چلے کی 94، کیرلا میں 1 4 ماہ کی 8 چلے کی، تمل ناڈو میں 10 4 ماہ کی 32 چلے کی، مہاراشٹر میں 2 4 ماہ کی 78 چلے کی، بہار میں 2 4 ماہ کی 26 چلے کی، آندھرا پردیش میں 13 4 ماہ کی 40 چلے کی، چھتیس گڑھ میں 1 4 ماہ کی 4 چلے کی، گوا میں 1 جماعت چلے کی، اڑیسہ میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 3 چلے کی، بنگال میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 17 جماعتیں چلے کی، آسام میں 11 جماعتیں چلے کی، بہار میں 6 جماعتیں 4 ماہ کی 33 جماعتیں چلے کی، جھارکھنڈ میں 1 جماعت 4 ماہ کی 16 جماعتیں چلے کی، UP میں 16 جماعتیں 4 مہینے کی اور 94 جماعتیں چلے کی، اتراکھنڈ میں 6 جماعتیں 4 ماہ کی 10 جماعتیں چلے کی، دہلی میں 3 جماعتیں چلے کی، پنجاب میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 7 جماعتیں چلے کی، ہماچل میں 1 جماعت چلے کی، ہریانہ میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی 10 جماعتیں چلے کی، جموں کشمیر میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی 9 جماعتیں چلے کی، راجستھان میں 5 جماعتیں 4 ماہ کی 40 جماعتیں چلے کی، MP میں 15 جماعتیں چلے کی، نیپال میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی اور چلے کی 3 جماعتیں، اور میوات میں 1 جماعت، اور صوبے میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی اور 59 جماعتیں چلے کی تقاضے پر چلائیں۔ ماہانہ 3 دن جماعتوں کا اوسط گزشتہ 2000 تھا، اب کی بار 1700 ہے۔ ماہ مستورات گزشتہ بیرون میں 1 جماعت تھی، اس بار 3 جماعتیں ہیں، وہ تینوں جماعتیں ایک بوتسوانا، ایک ملاوی اور ایک کینیا میں۔ 40 دن کی ملک میں گزشتہ 5 جماعتیں تھیں، اس وقت 11 جماعتیں ہیں، وہ 11 جماعتیں نیلور، غازی آباد، دہرادون، بھساول، سیوان، امراوتی، جے پور، جودھپور، نوہر، شیموگا اور تمکور میں کام کر رہی ہے۔ 10 دن کی گزشتہ 70 جماعتیں تھیں، اس وقت 75 ہیں۔ 3 دن کی گزشتہ 554 تھی اور موجودہ 583 ہیں۔ گھروں کی تعلیم گزشتہ 68,809 مکانات میں تھی، اس وقت کارگزاری 68,884 مکان میں ہے۔ 6 صفات کے ساتھ گزشتہ 22,165 میں تعلیم تھی اور موجودہ کارگزاری 22,724 ہے۔ شب گزاری کے مقامات پورے صوبے میں 115 ہیں۔ مجموعی طور پر گزشتہ 20,602 کی کارگزاری تھی، اس وقت 20,700 کی کارگزاری ہے۔ تاہم قیام کے سکالر گزشتہ 3,750 سے اس وقت کی کارگزاری 3,780 ہے۔ سال میں
गुज़िश्ता साल 177 उलमा चल रहे थे, इस वक्त 110 चल रहे हैं। 4 माह में 120 उलमा चल रहे हैं। तबक़ाती काम के एतबार से समाज से माजूरीन के अंदर हमारे यहाँ गुज़िश्ता कारगुजारी में 1 जमात चिल्ले की गई थी। इस वक्त 6 जमातें माजूरीन की काम कर रही है मुल्क में। एक पूना में, एक अहमदाबाद में, एक बम्बई में, एक जम्मू में, एक कच्छ भूज में और एक वादी में। 3 दिन की गुज़िश्ता 28 जमातें थी और इस वक्त 34 जमातें हैं। समाज से माजूरीन का पूरी तादाद पूरे जिले के अंदर, पूरे सूबे के एतबार से समाज के माजूरीन की पूरी तादाद पूरे सूबे में 1761 है, जिसमें 4 माह वाले 18, 40 दिन लगा हुए 222 और 3 दिन लगा हुए 500 साथी हैं और इनके तर्जुमान 140 हैं। गुज़िश्ता 12-13 अगस्त को पूरे जिले, पूरे सूबे का एक अमूमी समाज से माजूरीन का जोड़ हुआ था, जिसमें 158 200 में 2 कम माजूरीन जुड़े और तर्जुमान इनके 166 जुड़े और 57 माजूर ऐसे थे जिन्होंने इस साल के अंदर नए माजूर जिन्होंने वक्त लगाया और हफ्तारी इज्तिमा में मजबूरी तौर पर 90 समाज से माजूरी जुड़ते हैं। रेलवे वालों ने पूरे सूबे में रेलवे वालों की जो तादाद है 2287, इसमें कुली 600 है। बुलेट ट्रेन और सेंट्रल गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट में जो मुसलमान काम करते हैं इनकी तादाद 2500 है। हमार 125 है, पार्किंग वाले 330 हैं, रेलवे पार्किंग वाले। इन रेलवे वाले साथियों में 4 महीने लगा हुए 91 साथी हैं, 40 दिन वाले 142 हैं और 2023 में इस साल में 4 माह में 3 साथी रवाना हुए और 40 दिन के अंदर 9 साथी रवाना हुए और आइंदा शनिचर इतवार को पूरे सूबे में रेलवे वालों का अहमदाबाद से करीब खेड़ा में एक कस्बे में इनका एक अमूमी जोड़ है। इंशाअल्लाह वहाँ से भी जमात से चिल्ले 4 महीने की बनने की रवाना होगी। असली तलबा में माशाअल्लाह हमारे यहाँ मस्जिद की सतह से काम होता है। हर मस्जिद के अंदर तलबा की, स्टूडेंट की कमोबेश तादाद होती है। वो अपनी मस्जिद व जमात में जुड़ते हैं, मस्जिद व जमात के सारे अमाल में शिरकत करते हैं, अमूमी गश्त में शिरकत करते हैं, से रोज़ा अपनी जमातों के साथ लगाते हैं और उन्हीं के ज़रिए से साल के शुरू के अंदर इनकी फहरिस्त बन जाती है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज, ITI और दीगर इनके जितने दर्जात होते हैं ऊपर नीचे के, ये तलबा के रास्ते से माशाअल्लाह इनकी हर मस्जिद के पास एक लिस्ट होती है, किनका कब वैकेशन है, किनकी कब छुट्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। हर ज़िले में एक मामूल है कि साल में तलबा के अमूमी 2 जोड़ ज़िले पैमाने पर करते हैं। एक जब उनका बड़ी छुट्टियां होने वाली होती हैं अप्रैल मई में, तब हर ज़िले वाले अपने तमाम तलबा को जोड़कर इनकी अप्रैल मई की तशकील करते हैं। अमूमन ये जोड़ हमारे सूबे में फरवरी महीने में होते हैं, चूँकि मार्च में ये एग्ज़ाम की तैयारी में होते हैं तो मार्च में जोड़ करने से इन पर ज़र आती है। फरवरी में सारे अजला वाले अपने यहाँ जोड़ करके इनकी तशकीलें कर लेते हैं और इनकी माशाअल्लाह 1 महीने 1.5 महीने पूरी तरतीब बन जाती है, जमातें मखलूत बन जाती हैं, इनके रुख आ जाते हैं और अप्रैल मई के वैकेशन में ये चिल्ले की जमातें इनकी रवाना हो जाती हैं। दूसरा जो इनका, जब इनका नया साल शुरू होता है जून में, जून जुलाई तक एडमिशन चलते रहते हैं, जुलाई तक ये मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद माशाअल्लाह हर ज़िले वाले अपने यहाँ इन तलबा को जोड़ लेते हैं। अब इन्हें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी पढ़ाई के साथ, अपने अमाल की पाबंदी के साथ, यूनिवर्सिटी में कैसे मेहनत करनी है, कॉलेज में कैसे काम करना है, स्कूल में कैसे काम करना है, ये सारी बातें इनके सामने तफसील से समझाई जाती हैं। बाद जगह अच्छी कारगुजारियाँ होती हैं, वो कारगुजारियाँ जोड़ के में होती हैं जिससे दूसरे तलबा को रहबरी हो जाती है। इसकी बरकत से माशाअल्लाह ये स्कूलों में, कॉलेजों में बाजमात नमाज होती हैं। इनके पास 5-10 मिनट का वक्त होता है तो 5-10 मिनट के लिए वो नए स्टूडेंट की मुलाकातें करते हैं और इनको माशाअल्लाह नमाज में, अमाल में जोड़ने की फिक्र करते रहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ मुस्लिम हॉस्टलें हैं जिनमें सूबे के भी और बाहर के सूबों के भी और गैर मुल्की तलबा रहते हैं। इन
इन तमाम को माशाल्लाह जोड़ने की काम के एतबार से इन हॉस्टलों में फिक्र होती है। इन हॉस्टलों में इनके अपने इबादत खाने होते हैं जिनमें 5 वक्ता नमाजें होती हैं, तालीम होती है, इन्हीं की अपनी मस्जिद और जमात होती है, इन्हीं का अपना एक गश्त का दिन मुतय्यन होता है और इन्हीं की माशाल्लाह फुर्सत के वक्तों में नए पुराने तलबा में मेहनत करने की एक तरतीब होती है। ऐसे हर जिले के अंदर कुछ मुतहर्रिक तलबा होते हैं जो अपने अपने हलकों के अंदर माशाल्लाह जिलों में काम को लेकर चलने वाले होते हैं। हर हलके में ऐसे 2-5 होते हैं, तो वक्तन फवक्तन 1.5-2 महीने में, कभी 2-2.5 महीने में ये अपने 2-5 जहाँ कम ज़्यादा तादाद है उस एतबार से ये तलबा जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये अपने अपने हलकों में तलबा का काम किस तरीके से चल रहा है, क्या नौयत है, इसकी कम्मल कैफल कारगुजारी लेने के बाद आगे इनको क्या करना है, आगे इनके सामने क्या तकादा है। कोई छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों के लिए क्या तैयारी करना है। जैसे सामने दिवाली का छोटा वैकेशन आएगा, इसमें अशरे की खूब जमातें बनेगी, तो अभी से इसकी तश्कील और तैयारियां शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह आखिरी मौके पर इनकी वसूलियात भी आसान हो जाती है और अच्छी काफी तादाद में हर जिले से अशरे की जमातें मखलूक बनकर निकलती है। इसके अलावा एक तबका स्टूडेंट का वो होता है असली तलबा में कि जिनकी पढ़ाई का निज़ाम सेमेस्टर के साथ हर 6 महीने के बाद इनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। तो ऐसे तलबा की मुस्तकिल इनके पास फहरिस्त होती है, तो इनकी छुट्टियों पर इनकी अशरे की जमातें बनाकर करीब के जिलों में भेजी जाती हैं और ये तलबा भी माशाल्लाह अपनी पढ़ाई के साथ पूरे मुतहर्रिक रहते हैं। हमारे यहाँ सूबे का जो मशवरा होता है, ये सूबे का मशवरा हर 2 महीने के बाद होता है। तकरीबन 26 साल से हमारा मामूल है। 1997 के अगस्त महीने से ये हर 2 महीने में हमारा सूबा जुड़ता है। शुरू में 3-4 की तादाद थी, बढ़ते बढ़ते इस वक्त हमारी तादाद 12 की है। इन 12 में 2 साल वाले उलमा होंगे, बाकी 10 में 4 मुतय्यन होंगे जिन्हें हर मशवरे में शिरकत करनी है, इल्ला ये कि वो जमात में हो वो नहीं, बाकी 6 साथी उन जिलों से बदल कर मशवरे में शिरकत करें। ये मशवरा भी जगह बदल कर हर 2 महीने पर होता है और इस पर जुड़ने की तरतीब ये होती है कि जुमा के दिन असर में पूरा सूबा जुड़ जाता है। जुमा के दिन असर में पूरा सूबा, इसमें मस्जिद 2 चीजें होती हैं। एक बेरून जाने वाली जमातें जिस जिले में होती है वो अपनी जमातों को लेकर पहुंच जाते हैं। जिन जिलों की जमातें पिछले 2 महीने में काम करके आई हैं वो जमातें भी माशाल्लाह इस मशवरे में शिरकत कर लेती हैं। असर से लेकर इशा तक बामर्तबा इशा देर से होती हैं। जितनी बेरून काम करके जमातें आई हैं इसकी एक तफसीली कारगुजारी होती है। ये नई जाने वाली जमातें जो गोश होने के लिए आई हैं, इन जमातों के सामने काम करके आने वाली जमातों की कारगुजारी होती है। जाने वाली जमातों को बहुत अच्छी बड़ी रहबरी मिल जाती है। मशवरा शनिचर के दिन सुबह से शुरू होता है। आमतौर पर सुबह से इतवार की ज़ोहर तक का वक्त मांगा होता है। कभी इतवार में 1 नशिश, कभी इतवार में ज़रूरत होती है तो 2 नशिश के बाद दुआ हो जाती है। जब जिले का तनकीदी मशवरा, जिले का ये सूबे का मशवरा पूरा हो जाता है, इसके दूसरे इतवार हर जिला अपना तनकीदी मशवरा करता है। यहाँ से जितने अजायब इरादे तकादे मशवरे से लिए हैं, ये तनफीस के अंदर इसको अपने पूरे सिरे के सामने माशाल्लाह लाया जाता है। और इस तनफीस की ये शक्ल होती है कि आमतौर पर इतवार के दिन होता है, शनिचर की रात को इशा की नमाज पढ़ के खा पी के फारिग होकर हर जगह की पूरी मस्जिद और जमात जहाँ इनकी लिए जगह होती है मशवरे से, माशाल्लाह उस जगह पर पूरी मस्जिद और जमातें पहुंच जाती हैं। जहाँ बड़ी मस्जिदें हैं जिलों में, वहाँ मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। जहाँ बड़ी मस्जिदें नहीं होती हैं वहाँ खेतों में पिंडाल बांध कर ये मशवरा होता है। पूरी मस्जिद और जमातें पहुंच जाती हैं और ये पूरा वक्त फारिग करके आते हैं और ये मशवरे आमतौर तक हमारे ज़ोहर तक चलते हैं। और इनमें जो तकादे सूबे के मशवरे में जिले के 10-12 साथियों ने लिए हैं, इन तकादों की तरदीद दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ 10 जमातों के तकादे लिए हैं, ये तरदीद देते हैं कि भाई हमने एक तकादा लिया है तो माशाल्लाह पूरे जिले की मस्जिद और जमातें इसकी अजाइम इरादे करते हैं। ये तकादे 10, 12, 15, 20 तक पहुँच जाते हैं अजाइम तक। फिर वो मस्जिद और जमातें अपने अपने हलकों में मस्जिदों में पहुँचने के बाद इन तकादों को अपनी मस्जिदों के अंदर तनफीद की शक्ल बनाते हैं। एक चीज ऊपर से चलती है नीचे तक मस्जिद तक पहुंच जाती है
اوپر کا ذمہ دار طبقہ، نیچے کی مسجد اور جماعت کا طبقہ، سب مل کر ایک اجتماعی فکر کے ساتھ جب ایک بات کو سوچتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پورے ضلع کے صوبے کے ذمہ دار ساتھیوں کا سال میں ایک سفر ہوتا ہے، اس میں تقریباً 30 سے 35 کی تعداد ہوتی ہے۔ پورے صوبے میں 21 حلقے ہیں، ہر حلقے کو پورے 48 گھنٹے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اس کا مجمع 30-35 ہزار کا ہو، چاہے اس کا مجمع 500 کا، پورے 48 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں 48 گھنٹے میں پورے اعمال، پوری فکریں، پوری کارگزاریاں، عام مجمع بھی ہے، تصویبار جماعتیں بھی ہیں، نیا مجمع بھی ہے، بلکہ جہاں یہ اجتماعات کا جو ماحول بنتا ہے، اس سے پہلے ایک بات ہمارے صوبے کے مشورے سے طے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ضلع اجتماع کی تاریخوں سے پہلے ایسی اپنی ایک تاریخ طے کریں کہ ان کے زونوں میں جماعتیں چلیں۔ زون کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضلع میں کچھ غیر مانوس بنجر بستیاں ہوتی ہیں، جہاں عام طور پر ہماری جماعتوں کے لیے مسجدوں کے اندر داخلہ ممنوع ہوتا ہے، بھائیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، جماعتیں نہیں پہنچ سکتی ہے، تو وہاں ٹینٹ لے کر جماعتیں جاتی ہیں، کسی کے کھیت میں، کہیں دھرم شالہ میں، یا کسی کی اسکول کے اندر اپنا ٹینٹ لگا کر جماعت رہتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کے 5 سے 7 مکان ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ مکان ہوتے ہیں، حسب ضرورت جماعت 2 دن یا اس سے زیادہ قیام کرتی ہے، اور وہاں 100% ایک گھر میں جا کر ایمان، اعمال، آخرت، با جماعت نماز پڑھ کیسے شروع ہو اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر، اس کی جماعت فکر کرتی ہے، اور ساتھ میں اپنے ضلع کا آئندہ 1.25 مہینے کے بعد فلانی جگہ پر اجتماع ہے، اگر اجتماع کے نام سے الرجی ہے، سیرت پاک کا جلسہ ہے، اس عنوان سے ان کو دعوت دے کر ایسے نئے مجمع کو اجتماع میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہ زونوں کی جماعتیں کام کرتے اپنا چلہ پورا کرتے ہوئے اجتماع میں پہنچتی ہے، اور اجتماع ہی میں ان کے لیے ایک مستقل مجلس ہوتی ہے کارگزاری کی، جس میں ہر حلقے کے نمائندہ ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور ایسی تنظیمیں جو تنظیمیں ضلع کے اندر مکاتب چلاتی ہیں، اور مکاتب کے سلسلے میں جو علماء کرام فکر ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی اس کارگزاری میں شرکت کرتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بستیاں مسلسل محنت کے بعد ماشاءاللہ نرم ہو گئی، ان میں وحشت ختم ہو گئی، اب وہاں مکتب کی شکل زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ تنظیم سارا مکتب کا نظام سنبھال لیتے ہیں، بڑی صاحب جاتے ہیں عصر کی نماز میں، وہاں اذان دیتے ہیں، 5, 7, 10 گھر مسلمانوں کے ہیں، ان کو چھوڑ کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں، عصر سے مغرب تک ان کے بچوں کو لے کر تعلیم دیتے ہیں، قاعدہ امہ پڑھاتے ہیں، مغرب کی نماز پھر مولانا اذان دیتے ہیں، پھر ان کے اندر بستی کے اندر یہ باقاعدہ مغرب کی نماز اذان جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ عموماً یہ وہ بستیاں ہوتی ہیں جہاں نہ مسجد ہیں، نہ مدرسے ہیں، نہ عبادت خانے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اذان کی آواز تک ان کے کان میں کبھی نہیں سنائی دیتی۔ ایسی بستیوں کے اندر زوروں کی جماعت کے راستے سے الحمدللہ کافی بستیوں کے اندر الحمدللہ اس وقت نماز با جماعت شروع ہو گئی، کئی جگہوں پر الحمدللہ مکاتب کا نظام پورا قابو میں ہے۔ اور یہ زوروں میں چلنے والی ساری جماعتیں پیدل چلیں، یہ سواری اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، پیدل چلے گی جماعتیں۔ کارگزاری ایسی ہوتی ہے کہ کوئی جماعت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں 10 کلومیٹر، کوئی 12 کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر، کوئی 28 سے 30 کلومیٹر، بعض جماعت کی ہمت والی ہوتی ہے ایک بستی سے دوسری بستی تک 35 کلومیٹر پیدل چلے، صبح تہجد میں نکل جاتے ہیں، ظہر تک بستی کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا ایسی کچھ بستیاں ہیں پورے گجرات صوبے میں جہاں پر 50% نمازی، 60% نمازی، 70% نمازی، ایسی کچھ بستیاں بنی ماشاءاللہ، خروج تو خوب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ گزشتہ سال دسمبر میں جب یہ سفر ہوا ہمارا ساتھیوں کا، اس میں بعض یعنی شروع سفر سے نہیں لیکن 20 سفر میں بعض اضلاع سے یہ چیزیں پوچھی گئی، تو ہمارا یہ بناسکاٹھا ہے، ہمارا یہ مہسانہ ہے، سابرکاٹھا ہے، ان میں بعض بستیاں ایسی ملی کہ جن میں 100% لوگ نمازی، مرد بھی نمازی ہے، عورتیں بھی نمازی، 100%، کوئی بالغ مرد کوئی بالغ عورت بے نمازی گاؤں کے اندر نہیں، کہیں 80 مکان ہیں، کہیں 105 ہیں، کہیں 110 مکانات ہیں۔ الحمدللہ اس لائن سے بھی پورے صوبے میں فکر دلائی جا رہی ہے کہ بھائی نمازیوں کی تعداد ہر مسجد کے اندر بڑھائی جا رہی ہے۔
हमारा काम तो उम्मत में सारे दिन को जिंदा करना है। अब जाहिर सी बात है, दीन का सबसे आसान अमल कोई है वो नमाज है। अगर उम्मत नमाज के लिए आमदा नहीं हुई तो दीगर उम्र के लिए कैसे आमदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन से सुबह में फिक्र भी हो रही है और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों से अच्छी कारगुजारियाँ हो रही हैं। इस वक्त इसको जमा नहीं किया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे के मशवरे में अच्छी जाती कारगुजारी है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन से हमारे साथी फिक्र कर रहे हैं कि नमाजियों के फीसद बढ़ते चाहिए। ये फिक्र तो हिंदुस्तान के तमाम सूबों में इंशाअल्लाह अगर शुरू हो जाएगी तो ये रुख बहुत अच्छा है। खुरूज तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्की से नवाजें, लेकिन 100% बस्तियों को नमाजी बनाने की फिक्र की। एक हमारे समाज से ये हमारी ये जो तबक़ाती किताब के अंदर कुछ चीज़ें असरी तलबा के गुज़िश्ता 2 माह में 42 जोड़ हुए, इसमें 16,900 तलबा जुड़े और रिक्शा वालों के मजमूई तौर पर अलग अलग अजला में 8 जोड़ हुए जिसमें 655 रिक्शा वाले जुड़े। टीचर हजरात के 2 जोड़ हुए जिसमें 175 टीचर जुड़े। स्क्रैप का काम करने वाले का 1 जोड़ हुआ, 132 जुड़े। मजदूर तबके के 5 जोड़ हुए, 360 मुसलमान जुड़े। बेकरी का काम करने वालों का 1 जोड़ हुआ जिसमें 250 मुसलमान जुड़े। ड्राइवरों का जोड़ हुआ 1 जोड़ हुआ जिसमें 30 जुड़े। दर्जियों का 1 जोड़ हुआ जिसमें 100 जुड़े। ताजिर हजरात का जोड़ हुआ 4 जोड़ हुए, मजमूई तौर पर 215 की तादाद जुड़ी। हेयर कटिंग वालों के 1 जोड़ हुआ जिसमें 40 की तादाद जुड़ी। ये कुरैश बिरादरी के 5 जोड़ हुए, 186 मजमूई तौर पर जुड़े। लकड़ी फरोश का 4 जोड़ हुए, 317 जुड़े। गैरेज का काम करने वाले का 1 जोड़ हुआ, 17 जुड़े। डॉक्टर हजरात के 3 जोड़ हुए जिसमें 86 डॉक्टर जुड़े। दीगर सूबों के अपने अपने काम के लिए यहाँ रहने वाले हैं, इनके 3 जोड़ हुए, 250 जुड़े। प्लम्बरों का जोड़ हुआ 1 जोड़ हुआ जिसमें 55 जुड़े। कलर काम करने वालों के 2 जोड़ हुए, 80 जुड़े। ट्रांसपोर्ट के काम करने वालों का 1 जोड़ हुआ जिसमें 100 जुड़े। फैब्रिकेशन का काम करने वालों का 1 जोड़ हुआ, 150 जुड़े। और रेलवे के मजमूई तौर पर सूबे में 4 जोड़ हुए जिसमें 408 रेलवे में काम करने वाले साथी जुड़े।